Let's understand a very simple concept, that is median of a triangle. For that, there is a statement. To understand this statement, I'll take a triangle ABC. Now on side BC, I'll take a point, that is point D, which is the midpoint of side BC. Okay. Now look at vertex A and midpoint D. I'll join that vertex A and the midpoint. So I'll get a segment. Now this segment is said to be as median. तो मीडियन होता क्या है? मीडियन एक सेगमेंट होता है जो वर्टेक्स को टच करेगा और उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल आपको दिया. ठीक है, लुक एट दिस वर्टेक्स ए. देयर आर 3 वर्टेक्स. तो मैंने पहला वर्टेक्स ए लिया एंड उसका ऑपोजिट साइड, वर्टेक्स ए का ऑपोजिट साइड इज BC. फाइन. एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. तो वर्टेक्स से लेके मिड पॉइंट तक अगर मैंने एक सेगमेंट ज्वाइन किया, वो सेगमेंट को हम बोलते हैं मीडियन. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ having understood what is a median, let's understand the meaning of centroid. Okay, AD is the median over here. We'll understand the meaning of centroid. Now there is a definition of the centroid. I want everyone to go through the definition once, then I'll explain. Okay. To understand the statement, I'll take a triangle, that is triangle ABC again. Now on side BC, I'll take point M, which is the midpoint of side BC. Now look at vertex A. Now from that vertex to the opposite side ka midpoint, that is M, if I join a segment, okay, I join that, I'll get a segment. Now that segment is said to be as median. Now tell me, triangle में कितना median draw कर सकते हैं? Yes, हम 3 median draw कर सकते हैं because there are 3 vertex. ठीक है? Now look at side AC. वो side पे I'll take midpoint, that is point N. Again it is midpoint of side AC. उसका opposite vertex, that is point B. वहाँ से I'll draw a line. Now this line, if it is joining, it is called as the segment and it is the median. Now on side AB, I'll take midpoint, that is point L, और उसके opposite side से if I draw a segment from point C, again I'll get a median. Now if you see, all the 3 medians are intersecting at one point. That point is said to be a centroid. अभी हम definition read करेंगे तो हमें समझ में आएगा. The point of concurrence. Concurrence का मतलब होता है intersection of the medians of a triangle is called as the centroid. ठीक है? Now centroid is always denoted by letter G, compulsory. Now centroid का एक property है. The property says that centroid divides each median in the ratio 2:1. Centroid हर एक median को divide करता है. Just an example, look at median AM. ठीक है, that point G is dividing AM into 2 parts. Yes or no? Yes. Now which 2 parts it is dividing into? Yes, AG and GM. ठीक है, तो वो ratio में divide करता है. So AG will be 2 parts and GM will be 1 part. ठीक है, and if I say total कितना parts है, AM total कितना parts रहेगा? When I say total, मतलब आपको add करना है 2 plus 1, which is 3. So AM will be 3 parts. Now let's look at the diagram over there. Suppose if I take the ratio as AG upon GM, so we know that AG is 2 parts, so I'll write 2, and GM is 1 part. Let's say मैंने ratio इस तरह से लिया, AG upon AM. तो AG is 2 parts और AM के बारे में ना आपको बताया इसके पहले, AM is total करना है 2 plus 1, so total is nothing but 3 parts. ठीक है, and suppose if I take, let's say GM upon AM लिया. Now GM is nothing but 1 part and AM, वापस से AM कितना रहेगा total? It will be 3 parts. ठीक है. Now same way, suppose मैंने median लिया BN. Now how to identify कि कौन सा 2 parts रहेगा और कौन सा 1 part रहेगा? ठीक है, इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको.
नाउ सेंट्रोइड से लेके अगर आप वर्टेक्स की तरफ जाते हो तो इट विल ऑलवेज बी टू पाथ्स. जैसे यहाँ पे सेंट्रोइड इज G and if you are going towards the vertex that is B, so it is always two paths. And centroid से अगर आप मिड पॉइंट की तरफ जाते हो then it is always one path. ठीक है, ये शॉर्टकट है. So I'll write BG upon GN, the ratio will be 2 upon 1. Suppose if I take ratio BG upon BN, तो क्या होगा रेशियो? तो BG is 2 parts and BN टोटल है, तो टोटल कितना पार्ट्स है? 3. Suppose if I take Gn upon Bn, so Gn is one part and Bn is how many parts? 3 parts. ठीक है? So this is very easy. अभी suppose last CL मैंने median लिया. Now you people tell me, मैंने अभी shortcut आपको दिखाया कि कौन सा 2 पार्ट रहेगा और कौन सा 1 पार्ट रहेगा. Tell me. Yes. सेंट्रोइड से अगर आप वर्टेक्स की तरफ जाते हो तो वो हमेशा 2 पार्ट्स रहेगा. सेंट्रोइड से अगर आप मिड पॉइंट की तरफ जाते हो तो वो हमेशा 1 पार्ट. तो चलो, नाउ यू पीपल टेल मी, क्या रेशियो आप फॉर्म कर सकते हो? व्हाट विल बी द फर्स्ट रेशियो? यस, CG अपॉन GL will be 2 upon 1. Tell me the second ratio फटाफट. Okay, CG upon CL, that would be 2 upon 3. And tell me the third ratio. Yes, GL upon CL, that would be 1 upon 3. Okay, very easy. Now let's see the sum based on this. Very easy sum, बहुत easy sum है. ठीक है, इसके ऊपर. Now let's start with the practice set 3.3 sum number 4. ये तो बहुत easy sum है. ठीक है, they are saying that diagram is already given in the textbook. They are saying that point G is the point of concurrence. Let's understand. वो लोग बोलते हैं point G is the point of concurrence of the medians of triangle PQR. Now तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो पॉइंट G क्या बन जाएगा? बराबर, इट बिकम्स द सेंट्रोइड. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट दिस. हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR पॉइंट G इज द सेंट्रोइड. अब ये कैसे पता चला? ऑलरेडी गिवन में था. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग दैट GT का वैल्यू दिया है 2.5 यूनिट्स. Now they are saying that find the length of PG and PT. तो एक एक करके फाइंड करते हैं. ठीक है, अभी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया. ठीक है, राइट नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड सेंट्रोइड का. इफ यू रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस. Centroid divides each median in the ratio 2:1. Now look at PT to be the median. डायग्राम में देखो, अगर हम लोग ने PT लिया मीडियन, now tell me कौन सा सेगमेंट 2 होगा और कौन सा सेगमेंट 1 पार्ट होगा? Yes, PG will be 2 parts and GT will be 1 part. So first they want us to find PG का value. Now we know that PG के साथ हम रेशियो लेंगे GT. Now the question arises, GT ही क्यों लेना है? क्योंकि उसका वैल्यू दिया है, as you can see given में उसका वैल्यू दिया है. Now we know that the ratio is nothing but 2 upon 1 and the reason is centroid divides each median in the ratio 2:1. Now PG का कुछ वैल्यू है क्या? नहीं, that is what they want us to find. GT का वैल्यू is 2.5 given में है, that is equals to 2 upon 1. Now basic cross multiplication, PG is equals to 2 multiplied by 2.5 which comes to 5 units. चलो PG का एक्चुअल वैल्यू मिल गया. अब क्या चाहिए हमें? PT का वैल्यू चाहिए. I want everyone to observe the diagram. Now look at PT. If you observe, PT is divided into 2 parts, that is PG plus GT between this, that is equals to. Now already हमने PG का वैल्यू फाइंड किया है, जरा देखो तो कितना है. Yes, 5 units plus GT का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 2.5.
Now what is 5 plus 2.5, which is nothing but 7.5 units. Units लिखना compulsory है उसका marks है, ठीक है. So very easy sum to understand. चलो next concept देखते हैं. The next concept is nothing but property of a median drawn on the hypotenuse of a right angle. So एक statement आएगा. Look at the statement. ठीक है. They are saying right angle triangle. So I'll take a triangle ABC. तो हम लिखेंगे in triangle ABC. Look at angle B. Measure of angle B is equals to 90 degree. ठीक है. अब आता है important part. Look at the statement. The length of the median on its hypotenuse. तो diagram से identify the hypotenuse. Yes, AC is the hypotenuse. अब इसके ऊपर मीडियन ड्रॉ करना है. दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज पे एक मिड पॉइंट होना चाहिए. दैट इज पॉइंट डी. ठीक है. नाउ AC का ऑपोजिट साइड देखो. AC का ऑपोजिट वर्टेक्स दैट इज पॉइंट बी. तो पॉइंट बी से डी तक हम ज्वाइन करेंगे. तो बी डी क्या बन जाएगा? मीडियन. ठीक है. एंड दैट मीडियन इज ऑन द हाइपोटेन्यूज. अगर ऐसा हुआ कि मीडियन हाइपोटेन्यूज पे है तो क्या होगा? देन द लेंथ ऑफ द मीडियन, अगर हमें मीडियन का लेंथ चाहिए दैट इज बी डी, वो हमेशा हाफ रहेगा. इट विल बी हाफ. किसका हाफ रहेगा? लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज AC का जो भी लेंथ रहेगा उसका हाफ BD रहेगा. ठीक है. नाउ दिस इज वेरी इजी. Let's understand the sum based on this. Take a very easy sum that we are going to do. Okay, let's start with this sum. Practice set 3.3 का sum number 3. बहुत easy sum है, बहुत मस्त है, मजा आएगा ये. So I'll take a triangle that is triangle PQR where one of the angle is 90. PQ का length दिया है 12 units. QR का length दिया है 5 units. और क्या बोला है देखो, QS is the median. मतलब point S is on hypotenuse. ठीक है. तो QS is the median. Find the length of QS. ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ QS. Now I guess everyone knows this. We know that QS is the median on the hypotenuse. So QS will be half into PR. But do we have the length of PR? No. Now let's try to get the length of PR. सबसे easy है. Now if you see PR belongs to right angle triangle और सबको मालूम है if it is right angle triangle कौन सा theorem यूज करना है? Pythagoras theorem. ठीक है ना. लेकिन फॉर्मूला यूज नहीं करना है. सबसे पहले कंपलसरी आपको ट्राइंगल का नाम देना है. जो एंगल 90 डिग्री है आपको वो लिखना है. ठीक है. और ये 90 कैसे पता चला उसका रीजन लिखना है. दैट इज गिवन. दिस इज द कंपलसरी स्टेप दैट यू हैव टू राइट. उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे. तो फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. एंड द रीजन इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम. पी क्यू का वैल्यू दिया है 12. तो 12 स्क्वायर. क्यू आर का वैल्यू दिया है 5 स्क्वायर. 12 square 144, 5 square 25, PR square is equals to 169. Taking square root on both the side, तो PR आ जाएगा 13 units. चलो PR तो हमें मिल गया. Now we know that QS is the median on the hypotenuse. ठीक है. And now we can use this formula. QS is equals to half into PR. और इसका रीजन लिखना पड़ेगा. ठीक है. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये पूरा रीजन लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल राइट एंगल है. मीडियन ऑन द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. वी हैव द लेंथ ऑफ पीआर, हमने फाइंड किया 13. हाफ ऑफ 13 इज नथिंग बट 6.5 यूनिट्स. ठीक है. वेरी 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 इजी सम. नाउ लेट्स एक और इजी कॉन्सेप्ट करते हैं. बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा इसमें भी. लेट्स अंडरस्टैंड angle bisector theorem. Now there are two parts that you need to understand for angle bisector. Part number 1. Now let's understand what the statement says. Okay, I'll highlight something. Look at this. Bisector of an angle. So I'll take an angle that is angle PQR.
ये एंगल का बाइसेक्टर, तो Q से I'll take a bisector that is QS. So ray QS is the bisector, well it is dividing the angle into two equal parts. So that is what I have written. Ray QS is the bisector of angle PQR. ठीक है, आगे क्या बोलते हैं? Every point on the bisector of an angle, every point, let's say QS पे, ये bisector पे मैंने एक point लिया, that is point A. So we'll write point A is any point on bisector QS. ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर बाइसेक्टर पे है तो क्या होगा? देन इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल. अभी एंगल के दो साइड्स होते हैं, दैट इज पी क्यू एंड क्यू आर. तो सबसे पहले पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर जाएगा, तो आई से ए बी इज परपेंडिकुलर टू रे क्यू पी, और दूसरे साइड पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, दैट इज ए सी इज परपेंडिकुलर टू रे क्यू आर. ठीक है, एंड दे आर सेइंग दैट पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट. इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और डिस्टेंट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल. मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस एंड ए से लेके सी तक का डिस्टेंस वुड बी इक्वल. सो ए बी विल बी इक्वल टू ए सी. इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. अब ये हम तब यूज करेंगे, पार्ट वन तब यूज करेंगे जब बाइसेक्टर क्वेश्चन में दिया हो. ठीक है, इफ बाइसेक्टर इज गिवन तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज पार्ट वन. तो उसमें क्या होगा? उसमें ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा, मतलब वो पॉइंट ए से ये साइड एंड पॉइंट ए से ये साइड इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन यूज. ओके, लेट्स सी पार्ट टू. अभी पार्ट टू इज द कॉन्वर्स ऑफ पार्ट वन. थोड़ा देखो, बहुत इजी है. नाउ they are saying that any point equidistant from the sides of an angle. So I'll take an angle, again angle PQR. If I take point A, now if you see point A is in the interior of that angle. बराबर पे नहीं? आगे क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं point A is equidistant from sides of an angle. मतलब सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो I'll write AB perpendicular to PQ and AC perpendicular to QR. अगर ऐसा हुआ, ठीक है, एंड अगर वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट रहा साइड से, मतलब ए बी और ए सी अगर इक्वल है, if AB and AC are equal, then what will happen? Then that particular point will lie on the bisector of the angle. ठीक है, ये वाला पॉइंट एंगल का बाइसेक्टर के ऊपर रहेगा. So ray QA will become bisector of angle PQR. So these two angles will be equal. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वापस से एक बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनना. कोई भी पॉइंट अगर साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है, देन दैट पॉइंट विल लाई ऑन द बाइसेक्टर. अब ये पार्ट टू कभी यूज करना है हमें? जब भी हमें बाइसेक्टर प्रूव करना है. क्वेश्चन में बाइसेक्टर नहीं दिया और अगर हमें बाइसेक्टर प्रूव करना है, तब हम ये वाला थियरम पार्ट टू यूज करेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं पार्ट वन और पार्ट टू कैसे यूज करना है. वेरी इजी सम, 3.4 का सम नंबर वन. In the given figure, मतलब already figure is given to us. They are saying that point A is on the bisector. देखो ऑलरेडी पॉइंट ए बाइसेक्टर के ऊपर है. ठीक है, मतलब बाइसेक्टर दिया गया है. So this is what I am going to write, that point A lies on the bisector. ठीक है, this is what is given to us. अगर पॉइंट ए बाइसेक्टर के ऊपर है, ठीक है, that means part वन हम यूज करेंगे. So we know that it is equidistant
ठीक है, पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। तो पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम रे वाई एक्स एंड वाई जेड। इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दिस इज पार्ट वन। ठीक है, नाउ ए एक्स का वैल्यू इज गिवन एज 2। दे वांट अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जेड, द लेंथ ऑफ ए जेड। ठीक है, now we know that point A equal distance पे है, तो AX is equals to AZ। therefore AX का वैल्यू अगर 2 है तो AZ का वैल्यू भी कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। as simple as that। तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया, पार्ट वन। पार्ट वन क्यों यूज किया, क्योंकि बाइसेक्टर दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ टू यूज पार्ट टू। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। दे आर सेइंग दैट एंगल RST is 56 degree, PT is perpendicular to ST and PR is perpendicular to ray SR. Segment PR is congruent to segment PT। ठीक है, find measure of angle RSP। अब बोलोगे सर ये तो कितना इजी है, we know that RSP is half of angle RST। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पूरे क्वेश्चन में कहाँ पे भी रे एसपी एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया है। So as for now, ray SP is not the angle bisector। ठीक है, तो हमें इसको सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना पड़ेगा। तो पार्ट टू हम यूज करेंगे। ठीक है, पार्ट टू में मैंने आपको क्या बोला, वो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए फ्रॉम द साइड्स। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, PT and PR are equal, which is given to us। ठीक है, नाउ अगर कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है साइड से, एंगल के साइड से, तो वो पॉइंट किसके ऊपर रहेगा, बोलो जरा। यस, वो पॉइंट एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर रहेगा। ठीक है, so we'll write therefore point P lies on bisector of angle RST। ठीक है, वो एंगल का बाइसेक्टर के ऊपर रहेगा। चलो हम लोग ने प्रूव किया कि P किसके ऊपर है, बाइसेक्टर के ऊपर है। तो ऑब्वियसली रे एसपी क्या बन जाएगा, इट विल बिकम दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल आरएसटी। अब हो गया, इजी है। अब वो एंगल बाइसेक्टर बन चुका है। नाउ इफ इट इज एंगल बाइसेक्टर, नाउ वी नो दैट एंगल आरएसपी इज हाफ ऑफ एंगल आरएसटी। ठीक है, therefore एंगल आरएसपी इज इक्वल्स टू हाफ इनटू आरएसटी का वैल्यू कितना है, 56 डिग्री। so angle RSP is equals to 20 degree। Hence proof। I guess everyone understood this sum। ठीक है, very 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 easy sum। now okay, very simple concept we will be doing now। let's understand similar triangles। to understand similar triangle, ठीक है, first I'll take this concept, understand this। पता है ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। look at the circle। ठीक है, what I'll do, I'll try to fit one circle into another and you can see it exactly fits into another। ठीक है, let's see star और square exactly fit होता है कि नहीं। yes, as you can see it is exactly fitting into each other। now my question to everyone, आपके हिसाब से ये exactly fit क्यों हुआ एक दूसरे के अंदर, बोलो क्या रीजन हो सकता है कि वो exactly fit हुआ। okay, yes, because they have same shape and same size। तो हमें मालूम है figures having same shape and same size are said to be as congruent figures। ठीक है, so having understood what are congruent figures, let's understand the meaning of similar figures। for that I'll take an example of a Taj Mahal। now tell me how many of you have visited Taj Mahal, actual Taj Mahal कितने लोग जाके आए हैं। okay, now जो लोग ताजमहल जाके आए हैं, ठीक है, you will see that it is so huge and it is so beautiful, right।
एंड अगर आप ताजमहल के बाहर आओगे तो काफ़ी सारी शॉप्स है जो उसका मिनिएचर सेल करते हैं, छोटा ताजमहल। हम्म, इस तरह से कुछ रहता है। ना इफ यू सी, दोनों 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 में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, उनका साइज अलग अलग है। ठीक है, दोनों का शेप विल बी सेम, लेकिन दोनों का साइज अलग है। तो सच फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लुक एट दी अर्थ। ठीक है, वी नो दैट अर्थ इज सो ह्यूज, और उसका रेप्लिका इज नथिंग बट अ ग्लोब, इट इज सो स्मॉल, देखो हाथ में आ जाता है। ठीक है, now again what you observe in this room, we observe that the shape remains the same but the size is different. ठीक है, चलो लास्ट ऑफ। now we'll see the aircraft, कितना बड़ा रहता है एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरप्लेन इज सो बिग, और उसका टॉय अगर हम लेके आए इस तरह से, so what do we observe again? चलो आप मुझे बोलो क्या ऑब्जर्व किया आपने, what is same and what is different? Yes, shape remains the same but the size is different. Such figures are said to be as similar figures. ठीक है, so figures having same shape but different size are said to be as similar objects. Now we are not going to study similarity of airplane or similarity of Taj Mahal. We are going to study similarity of a triangle. So I'll take a mobile phone और उसके अंदर एक ट्राइंगल लेता हूँ, that is triangle ABC. सपोज मैंने आपको बोला कि मुझे ये ट्राइंगल बड़ा करके दो, तो पहला क्वेश्चन आप पूछोगे कि सर आपको कितना बड़ा चाहिए ट्राइंगल। आई से दैट एक काम करो, इसका डबल करके दो। तो आप लोग क्या करोगे, इसको जूम करोगे। कितना जूम करोगे इसको, 2 टाइम्स। ठीक है, तो अगर जूम किया देन यू कैन सी इसका डबल हो गया। नाउ जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस आई चेंज द नेम ऑफ द बिगर ट्राइंगल एज PRQ। Now, if you notice, दोनों triangle में shape remains the same, but the size is not same. Tell me, such figures are said to be as what type of figures? Yes, similar. So I'll say triangle ABC is similar to triangle PRQ. Henceforth, अब से लेके हम similar word use नहीं करेंगे, उसका symbol use करेंगे, and the symbol is wave. ठीक है, तो इसको कैसे read करेंगे? Triangle ABC is similar to triangle PRQ. Now, if triangles are similar, तो उसके angles पे effect होता है। Let's see angle पे क्या effect होगा। Suppose angle A मैंने 30 डिग्री लिया, let's say angle A मैंने 30 दिया, तो वो triangle में angle P कितना होना चाहिए? Yes, it has to be 30. So I can say that angle C is 60 degree, तो angle Q कितना रहेगा? 60 degree. And angle B, if it is 90, then angle R is also 90. So what do we observe about the angles? We can see that corresponding angles, मतलब matching angles are always congruent. ठीक है, तो suppose अभी sides देखते हैं। ठीक है, एंगल का तो हम लोग ने देख लिया, अभी देखते हैं साइड्स पे क्या इफेक्ट होता है। सपोज इफ आई टेक AB as 8.5 सेंटीमीटर, इसका मैंने डबल किया। नाउ टेल मी 8.5 का डबल कितना? यस 17। तो मुझे आप बताओ वो दूसरे बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा साइड 17 होगा, बोलो जरा। यस, PR विल बी 17। इसके लिए इसको हम बोलते हैं मैचिंग साइड, और मैचिंग का अच्छा वर्ड होता है करस्पॉन्डिंग। सो AB, साइड AB करस्पॉन्ड्स टू साइड PR। लेट्स से साइड BC मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, उसका डबल इज नथिंग बट 10। On that particular triangle, bigger triangle, which side will be 10? Yes, RQ will be 10 centimeter, तो ये matching side हुआ, corresponding. And if AC is 10, तो tell me PQ कितना रहेगा? It will be 20. ठीक है? Now what do we observe over here? जैसे angles congruent हुआ, sides congruent नहीं हो रहा है। ठीक है? As you can see clearly, एक side छोटा है और एक साइड बड़ा है, तो साइड्स कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं।
हम इसका है ना रेशियो निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी, रेशियो निकाल के कुछ समझ में आता है कि नहीं। तो इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं। इफ आई टेक ए बी, उसका रेशियो करस्पॉन्डिंग में आएगा पी आर। सो 8.5 अपॉन 17 विच कम्स टू 1/2। चलो दूसरे तो करस्पॉन्डिंग साइड ले लो। आई टेक बी सी अपॉन आर क्यू, दैट इज 5/10 विच कम्स टू 1/2। And last corresponding side AC upon PQ, which is nothing but 10/20, 1/2. Okay, so what do I observe over here? I can see that when the triangles are similar, उसके corresponding side तो congruent नहीं हुए, लेकिन जब मैंने उसका ratio लिया तो देखो ratio congruent हो गया। So I can say that AB upon PR is equals to BC upon QR is equals to AC upon PQ. इसको हम बोलते हैं corresponding sides of similar triangles are in proportion। ठीक है, इसका रीजन है corresponding sides of similar triangles are in proportion। proportion का मतलब होता है ratios are equal, as you can see। so again I am saying angles will always be equal, लेकिन उसके corresponding side equal नहीं होते। लेकिन जब मैं उनका रेशियो लेता हूँ तो रेशियो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, okay, let's move ahead. Let's see some examples. Suppose they are saying triangle ABC is similar to triangle QRP. Now this time they have not given the diagram। ठीक है, अभी हमें मालूम है अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, मतलब उनका रेशियो इक्वल रहेगा। नाउ सपोज लेफ्ट वाले ट्राइंगल में से अगर मैंने फर्स्ट सेकंड लिया, ए बी लिया, ठीक है, तो राइट वाले ट्राइंगल में से हमें फर्स्ट सेकंड लेना है, दैट इज क्यू आर। तो रेशियो आएगा ए बी अपॉन क्यू आर, ये इक्वल होगा। सपोज मैंने फर्स्ट ट्राइंगल में से बी सी लिया, सेकंड एंड थर्ड, तो दूसरे ट्राइंगल में से आपको सेकंड एंड थर्ड लेना है, तो इसका रेशियो आएगा दैट इज बी सी अपॉन पी आर, दैट इज इक्वल्स टू, सपोज फर्स्ट ट्राइंगल में से है मैंने फर्स्ट एंड थर्ड लिया, तो सेकेंड ट्राइंगल में से आपको फर्स्ट एंड थर्ड ही लेना है और इसका रेशियो आएगा तो ए सी अपॉन क्यू। ठीक है, और इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एज सी एस एस टी, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये एग्जाम में चलेगा शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो। ओके, अभी हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स तो पता चल गया। कमिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ एंगल ए, लुक एट एंगल ए। Angle A is congruent to angle Q. Angle B will be congruent to angle R and angle C will be congruent to angle P. इसका रीजन है corresponding angles of similar triangle। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं CAST, कास्ट। ठीक है, ये एग्जाम में चलेगा। So I guess this particular concept is completely clear to everyone। ठीक है, okay, let's see the sum में बहुत easy sums है। ये ऑलरेडी इसके प्रीवियस इसमें किया था, तो ये आप खुद से कर सकते हो। दिस यू कैन डू इट फॉर होमवर्क। लुक एट दिस सम, ये एग्जाम में आएगा। दे आर सेइंग दैट देयर इज अ ट्रायंगल XYZ जिसका लेंथ XY इज 4 सेंटीमीटर, XZ इज 5 सेंटीमीटर एंड YZ इज 6 सेंटीमीटर। फर्दर दे आर सेइंग दैट ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर, मतलब जो दूसरा ट्रायंगल रहेगा वो बड़ा ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, because shape will be same but size will be different। ट्रायंगल PQR में एक साइड दिया है that is PQ which is 8 centimeter। Further they are saying that find the length of the remaining sides of triangle PQR। क्योंकि ट्रायंगल PQR उसका remaining sides अभी कौन सा है, एक तो है PR और दूसरा है QR। ठीक है, so we know that both the triangles are similar, we'll start with that। So triangle XYZ is similar to triangle PQR, reason is given। We know that if the triangles are similar, उसका जो corresponding sides है
तो उसका रेशियो विल बी इक्वल। तो रेशियो निकालेंगे। सपोज मैंने एक्स वाई लिया तो उसका रेशियो क्या आना चाहिए दूसरे ट्राइंगल में से पी क्यू। तो आएगा एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, चलो दूसरा रेशियो बोलो क्या आना चाहिए फटाफट। यस, वाई जेड अपॉन क्यू आर। एंड थर्ड रेशियो क्या आना चाहिए बोलो फटाफट। यस, एक्स जेड अपॉन पी आर। और इसका रीजन मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म में सी एस एस टी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखते हैं वैल्यूज दिया है कि नहीं। एक्स वाई का वैल्यू है क्या, हाँ है 4, तो एक्स वाई के बदले आ जाएगा 4। देखो जरा पी क्यू का कुछ वैल्यू दिया है क्या, यस इट इज गिवन दैट इज 8। दैट इज इक्वल्स टू वाई जेड का वैल्यू इज 6 सेंटीमीटर, क्यू आर तो फाइंड करना है, एक्स जेड इज 5 सेंटीमीटर एंड पी आर फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ सी आई टेक दिस टू रेशियो, इसको मैं नीचे ले लूंगा ये दो रेशियो को। तो 4 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन क्यू आर। सबसे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 मल्टीप्लाई बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 8। हमें जिसका वैल्यू फाइंड करना है आई कीप इट एज इट इज, 6 8 जा 48 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 12 जा 48, तो 12 सेंटीमीटर विल बी क्यू आर। चलो क्यू आर तो मिल गया। नाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू पीपल टू फाइंड लेंथ ऑफ पी आर। ठीक है, सो अगेन वी कैन टेक द रेशियो। अभी वापस से ये वाला रेशियो ले सकते हैं हम लोग। तो 4 अपॉन 8, अभी पी आर फाइंड करना है ना, तो 4 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन पी आर, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फटाफट करो। 8 5 is 40 डिवाइडेड बाई 4 विच कम्स टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें दोनों का लेंथ मिल गया। ठीक है, सो क्यू आर इज 12 एंड पी आर इज 10 सेंटीमीटर। आगे सबको समझ में आ गया रहेगा। तो लास्ट सम फॉर द डे, क्या इजी सम है, बहुत इजी सम है, मजा आएगा ये। They are saying that draw a sketch of pair of similar triangles। अभी सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना कौन सी बड़ी बात है। तो एक छोटा ट्राइंगल लेंगे, एक बड़ा ट्राइंगल लेंगे, और उनको नाम दे देंगे। लेबल देम, शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय सेम साइंस। ठीक है, तो एंगल ए, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमें पता है। तो एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट, तो ये हमें दिखाना पड़ेगा विद द साइन, देखो वहाँ पे साइन से दिखाना है। एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। ठीक है, और देखो साइन वैसे ही होना चाहिए। एंड एंगल सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। ठीक है, now if you see साइन अगर आप देखो तो अलग अलग है। यहाँ पे आप सर्कल नहीं कर सकते, यहाँ पे आप सर्कल नहीं कर सकते, वरना ये दो एंगल सेम हो जाएगा, हमें अलग अलग साइन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और इसका रीजन सबको मालूम है, सी ए एस टी। आगे क्या बोलते हैं, शो द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय द नंबर्स इन प्रपोर्शन। अभी दिस टाइम हमें नंबर्स असाइन करना है, यू कैन असाइन एनी नंबर्स। जस्ट एन एग्जांपल फॉर ए बी, इफ आई टेक 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमें मालूम है उसका डबल होगा, दैट इज 8। ठीक है, तो इसका रेशियो लेंगे हम लोग। तो ए बी अपॉन पी क्यू, प्रपोर्शन में बोला है, आप बोलोगे सर रेशियो क्यों ले रहे हो आप, बिकॉज इन द क्वेश्चन अगर आप देखो तो लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मीन्स रेशियो दिखाना है, रेशियो इक्वल, तो इसके लिए मैं रेशियो ले रहा हूँ। तो ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, सपोज मैंने बी सी लिया 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर विल बी 10, तो दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए सी 6 ले लेते हैं, तो पी आर कितना हो जाएगा 12, दैट इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो विल स्टॉप ओवर हियर and we'll continue in the next lecture. Hope everyone understood everything. Okay, so that's it. Bye everyone. Take care.